Students, whatever homework is given to you, you have to submit it on the very next day between 8 am to 1 pm to the given WhatsApp number, and it is compulsory to submit your homework as your attendance will be marked on the basis of your submission. Chapter 5 Food and Digestion. In first part, you had learned about need of food, nutrients and balanced diet. In this part, you will learn about process of digestion, effects of cooking, good eating habits and preservation of food. So, let's start. Digestion of food. Food की पाचन क्रिया. We need food to get energy. How do we get energy from food? What happens to the food that we eat? The food that we eat has to be broken down into simpler form. बच्चों, हमें खाने की क्यों जरूरत पड़ती है? क्योंकि उसमें से हमें एनर्जी मिलती है. फूड में से हमें शक्ति कैसे मिलती है? हम जो खाना खाते हैं उसका क्या होता है? जो हम खाना खाते हैं वो छोटे छोटे टुकड़ों में सिंपलर रूप में बन जाता है. The process of breaking down of food into its simpler form inside the body is called digestion. This simpler food is then easily absorbed and used by the body. शरीर के अंदर फूड को टुकड़ों में सिंपलर फॉर्म में भरने को ही पाचन क्रिया बोलते हैं. यही सिंपलर फूड आराम से हमारा शरीर उसको यूज करता है. The process of digestion is completed in several steps. फूड को डाइजेस्ट होने में कई स्टेप्स से गुजरना पड़ता है. There are various organs in the body that are involved in the process of digestion. These organs together form digestion system. हमारे शरीर में ऐसे बहुत सारे अंग हैं जो इस पाचन क्रिया को प्रोसेस में शामिल होते हैं. मतलब पाचन क्रिया की जो प्रोसेस होती है उसमें हमारे शरीर में जो भी अंग हैं वो यूज होते हैं. ये सभी अंग मिलकर डाइजेशन सिस्टम का रूप बनते हैं. द प्रोसेस ऑफ डाइजेशन. पाचन क्रिया का प्रोसेस. द डाइजेशन स्टार्ट इन माउथ. The food is first broken down in mouth into smaller pieces by chewing. पाचन क्रिया सबसे पहले हमारे माउथ से ही चालू होती है. जब हम खाने को चबाते हैं तब खाना हमारे माउथ में छोटे छोटे पीसेस में हो जाता है. There is a pair of salivary glands in the mouth which secretes a digestive juices called saliva. The chewed food is mixed with saliva. This makes the food soft and can be swallowed easily. Saliva also breaks down the starch into simpler substances. माउथ में सलाइवरी ग्लैंड्स की जोड़ी होती है जिसको सलाइवा मतलब जो थूक होती है उसमें डाइजेस्टिव जूसेस होते हैं. चबाया हुआ खाना सलाइवा के साथ मिक्स होकर खाने को नरम बना देता है और उसे फिर इजीली निगल सकते हैं. सलाइवा स्टार्च को सिंपलर रूप में तोड़ देती है. After swallowing the food from mouth, it passes through a long tube called food pipe. The food then reaches the stomach
which is a sac-like organ where food is churned. The stomach secretes the digestive juices, which breaks down proteins present in the food into simpler form. बाद में निगला हुआ खाना खाने की एक बड़ी नली जिसको फूड पाइप बोलते हैं उसमें से गुजरता है। फिर फूड पेट में पहुंचता है जो एक बोरी मतलब सैक जिसको बोलते हैं उसके रूप में जैसा एक अंग होता है जहाँ वो घूमता है, पेट में मौजूद जूसेस को पाचन क्रिया को पचाने में हेल्प करता है। वो खाने में से प्रोटीन को तोड़ के अलग करके सिंपलर रूप में बनाते हैं। फूड फ्रॉम stomach passes into a long coiled tube called small intestine. पेट में खाना लंबी coiled tube मतलब छोटी आंत में से गुजरता है। The inside walls of small intestine produces digestive juices. छोटी आंत मीन्स स्मॉल इंटेस्टाइन की जो दीवारें होती है वो उसके अंदर ही डाइजेस्टिव जूसेस पैदा करती है। द लीवर एंड पेनक्रियास ऑल्सो pour their juices in the small intestine. लीवर और पेनक्रियास भी स्मॉल इंटेस्टाइन में अंदर जूसेस डालते हैं। Here the food undergoes complete digestion. The digested food is almost like a liquid. The digested food from the intestine gets absorbed into the blood. The blood carries the digested food to all parts of the body. यहाँ खाना पूरी तरह डाइजेस्ट हो जाता है। डाइजेस्टेड फूड लगभग लिक्विड पानी जैसा होता है। वो डाइजेस्टेड फूड इंटेस्टाइन में से ब्लड एब्जॉर्ब करता है। फिर ब्लड डाइजेस्टेड फूड को बॉडी के सभी पार्ट्स तक पहुंचा देता है। डू यू नो? क्या बच्चों आप जानते हो? स्मॉल इंटेस्टाइन इज रियली नॉट स्मॉल. इट इज 20 feet long. It is called small because of its small width. Small intestine actually वो small नहीं होता है, वो 20 feet लंबा होता है। वो इसलिए small बोला जाता है क्योंकि उसकी width छोटी होती है, इसलिए उसको small intestine बोलते हैं। What happens to the undigested food? मतलब बच्चों हमने डाइजेस्टेड फूड के बारे में तो पढ़ा, पर जो खाना अनडाइजेस्ट होता है उसका क्या होता है उसके बारे में हम लोग अभी जानेंगे। अनडाइजेस्टेड फूड पासेस इनटू लार्ज इंटेस्टाइन। जो खाना डाइजेस्ट नहीं होता है वो लार्ज इंटेस्टाइन मतलब बड़ी आंत में पास हो जाता है। हेयर वाटर इज एब्जॉर्ब्ड फ्रॉम द अनडाइजेस्टेड फूड एंड सेमी सॉलिड वेस्ट इज थ्रोन आउट थ्रू द ओपनिंग्स कॉल्ड एनस। यहाँ पे अनडाइजेस्टेड फूड में से पानी एब्जॉर्ब हो जाता है, फिर आधा सॉलिड वेस्ट एनस में से बाहर निकलता है। नाउ इफेक्ट ऑफ कुकिंग ऑन न्यूट्रिएंट्स। पोषक तत्वों पे कुकिंग का असर। कुकिंग प्लेस एन इम्पॉर्टेंट रोल। कुकिंग एक खास पार्ट अदा करता है। देयर आर मैनी फूड आइटम्स दैट कैन नॉट बी ईटन रॉ। बहुत सारे ऐसे खाने के आइटम्स होते हैं जो कच्चे नहीं खा सकते।
proper cooking has lot of importance on our health. सही तरीके से खाना पकाना वो हमारी हेल्थ के लिए पका हुआ खाना बहुत इम्पोर्टेंट काम करता है. The heat of cooking kills germs that can cause disease. Cooking makes the food soft, tasty and easier to digest. कुकिंग की गर्मी कीटाणुओं को मार देती है जो कि बहुत सारी बीमारियों का कारण होते हैं. मीन्स खाने को पकाने से कीटाणु मर जाते हैं. It is important to cook the food in a proper manner. Otherwise, we may lose the nutrients present in the food. वो इम्पोर्टेंट है कि फूड को सही तरीके से कुक किया जाए, नहीं तो हम लोगों को फूड में मौजूद न्यूट्रिएंट्स को गंवाना पड़ेगा. We must remember the following points at the time of cooking. हमें कुकिंग करते समय नीचे दी गई पॉइंट्स को याद रखना चाहिए. Wash the vegetables before cutting in order to retain the nutrients. न्यूट्रिएंट्स मीन्स पोषक तत्वों को बरकरार रखने के लिए वेजिटेबल्स को काटने से पहले पानी से अच्छी तरह वॉश करना चाहिए. नेक्स्ट, यूज इनफ वाटर फॉर कुकिंग इंस्टीड ऑफ एक्सेस ऑफ वाटर. पकाते वक्त खाने को पानी डालते हैं उसमें जो भी उतना ही डालना चाहिए जितना उसके लिए ज़रूरी है. ज़्यादा पानी डालने से पोषक तत्व पानी में निकल जाते हैं. नेक्स्ट, अवॉइड ओवरकुकिंग. ओवरकुकिंग डिस्ट्रॉयज न्यूट्रिएंट्स प्रेजेंट इन द फूड. फूड को बहुत देर तक पकाना नहीं चाहिए क्योंकि फूड में न्यूट्रिएंट्स नाश हो जाते हैं और वो फूड हेल्दी नहीं रहता. गुड ईटिंग हैबिट्स. खाने की अच्छी आदतें. Besides eating good food, it is important to follow proper eating habits too. You should follow a few healthy eating habits to stay fit and strong. बच्चों, हम लोगों को अच्छा खाना तो खाते ही हैं, पर ये बहुत ज़रूरी है कि अच्छी आदतों को भी ध्यान में रखें. अगर आपको फिट एंड हेल्दी रहना है तो खाना खाने की कुछ अच्छी आदतों को फॉलो करना होगा. ऑलवेज रिमेंबर यू शुड. बच्चों, हमेशा याद रखें आपको क्या करना है. अभी आगे हम लोग इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं. नंबर 1, वॉश योर हैंड्स बिफोर एंड आफ्टर एवरी मील. खाना खाने से पहले और बाद में हैंड्स को अच्छी तरह धोना चाहिए. नेक्स्ट, रिंस योर माउथ वेल आफ्टर मील्स. खाना खाने के बाद माउथ को अच्छी तरह से वॉश करना चाहिए. नेक्स्ट, ईट फ्रेश वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स एंड include them in your diet every day. फ्रेश फ्रूट्स और वेजिटेबल्स खाने चाहिए. डेली डाइट में उनको आपको शामिल करना होगा. च्यू फूड वेल. फूड को अच्छी तरह चबाकर खाएं. नॉट स्वेलो द फूड क्विकली. फूड को जल्दी जल्दी निगलना नहीं चाहिए. ईट वेल कुक्ड फूड. अच्छी तरह से पका हुआ खाना खाएं. ईट अ बैलेंस्ड डाइट. संतुलित आहार खाएं. ड्रिंक प्लेंटी ऑफ वाटर. बहुत सारा पानी पिएं. प्रिजर्वेशन ऑफ फूड.
फूड की रक्षा करना या संभाल कर रखना। Storing and preserving the food in a proper way has lot of effect on health. Thus, we need to preserve the food carefully. फूड को सही तरीके से संभाल कर जमा करके रखना और खराब होने से बचाना, ये हमारी हेल्थ पे बहुत असर करता है। इसलिए बच्चों, हमको फूड को ध्यान से संभाल कर रखना चाहिए। द प्रोसेस ऑफ treating food in a way that retains its value for long time is called preservation. लंबे समय तक फूड में पोषक तत्व मौजूद रहें, उसी सही तरीके से फूड को संभाल कर रखने को ही प्रिजर्वेशन बोलते हैं। The food often gets spoiled due to heat, moisture, insects and germs. The spoiled food can be detected by its foul smell and sometimes in change of color. Consuming spoiled food may lead to food poisoning. अक्सर करके फूड कीटाणुओं, इंसेक्ट्स, बेज और गर्मी की वजह से खराब हो जाता है या सड़ जाता है। वो सड़े हुए खाने को गंदी स्मेल में कन्वर्ट कर देता है। कभी कभी उसका कलर भी चेंज हो जाता है। ऐसा सड़ा हुआ खाना जहरीला हो जाता है, जो कि हमें खाना नहीं चाहिए। प्रिजर्वेशन ऑफ फूड हेल्प्स टू प्रोटेक्ट इट फ्रॉम गेटिंग स्पॉइल्ड। देयर आर डिफरेंट मेथड्स ऑफ प्रिजर्वेशन ऑफ फूड। फूड को प्रिजर्व करके रखने से वो खराब नहीं होता, मतलब हम फूड को ज़्यादा टाइम तक रख सकते हैं। फूड को संभाल कर रखने के अलग अलग तरीके हैं। मेथड्स ऑफ प्रिजर्वेशन ऑफ फूड। फूड को रक्षा करने वाले तरीके। हीट एंड कोल्ड ट्रीटमेंट्स, गर्म और ठंडी ट्रीटमेंट्स। Food is preserved by boiling as it kills the germs. Milk is boiled at high temperature and then cooled. फूड को बॉईल करने से उसमें मौजूद कीटाणु मर जाते हैं। दूध को हाई टेम्परेचर पे गर्म करके फिर ठंडा करते हैं, तो उसमें जो भी कीटाणु होते हैं वो मर जाते हैं। इस तरह से हम दूध को बहुत टाइम तक रख सकते हैं। नेक्स्ट, फ्रीजिंग। फ्रीजिंग करना मतलब ठंडा करना। फ्रीजिंग foods such as vegetables and meat products at very low temperature does not allow germs to grow. वेजिटेबल्स और मीट को कम टेम्परेचर में रखने से उसमें कीटाणु पैदा नहीं होते हैं, मतलब फ्रीज में रखने से ठंडक मिलती है और फूड फ्रेश पड़ा रहता है। एडिंग सॉल्ट एंड शुगर। नमक और शक्कर डालकर रखना। शुगर एंड सॉल्ट आर गुड प्रिजर्वेटिव्स। नमक और शक्कर ये अच्छे प्रिजर्वेटिव्स हैं। पिकल्स आर मेड with lot of salt and jams, jellies and squishes are preserved by sugar. वो फूड को अच्छी तरह से रक्षा करते हैं, जैसे कि अचार में ज़्यादा सॉल्ट डाला जाता है। जेम्स, जेलीज और स्क्विशेस में शुगर डाल के प्रिजर्व करके रखने से वो बहुत दिनों तक अच्छी पड़ी रहती है। ऊपर दी गई पिक्चर में जैसे फूड मतलब मिल्क को गर्म करने से, अच्छी तरह से मतलब बॉईल करने से, वेजिटेबल्स को फ्रीज में रखने से, पिकल में ज़्यादा सॉल्ट डालने से और
जेम्स में हम लोग ज़्यादा शुगर यूज़ करेंगे तो ये सब चीज़ें ख़राब नहीं होती है। इस तरह से अलग अलग तरीक़ों से फूड को प्रिजर्व किया जाता है। Let us revise. Food is essential for the growth and to stay alive. Nutrients are the special substances present in food. The breakdown of food in the body is called digestion. Proper cooking has lot of importance on our health. It is important to follow proper eating habits. Treating food in a way that retains its value for a long time is called preservation. Thank you.